Hello students, today we are going to learn the one more problem on the application of differential equation. Okay, then come to the example number 16 of the Nirali publication book. Okay, now a particle of mass m is projected upward with velocity v. Assuming the air resistance k time its velocity, write the equation of motion and show it will reach the maximum height in time m upon k log of 1 plus kv upon gm, and the resistance travelled at any time t is mv upon k plus m square g upon k square into bracket 1 minus e raised to minus kt upon m minus gmt upon k. Okay. Now first understand the problem. Okay, the particle of mass m is projected upward with velocity. एक पार्टिकल है, उसका मास m है. ओके, it is projected upward means towards the upward direction. ओके, ऊपर की तरफ उसको with v velocity से प्रोजेक्ट किया है. ओके, प्रोजेक्ट किया है मीन्स ऊपर की तरफ उसको फेंका है. Assuming the air resistance k times its velocity. Here air resistance is what? Air resistance is k times its velocity. While write the equation of the motion. Here उन्होंने बोला है कि equation of the motion लिखने के लिए and show that it will reach the maximum height. वो maximum height में reach होगा जब time m upon k log of 1 plus kv upon gm होगा और distance travel at any time t कितना होगा mv upon k plus m square g upon k square into 1 minus e raised to minus kt upon m minus gmt upon k. Okay, ये अपने को प्रूव करना है. नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. वो बॉडी पे जो जो फोर्सेस है उसका टोटल करना है. उधर वो बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट है, उसका मास m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और दूसरा एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है माइनस k इंटू वी. ओके, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इसलिए उनका साइन हम निगेटिव लेंगे. ओके, नाउ बाय अप्लाइंग द डी एमलर्ट्स प्रिंसिपल, वी हैव टू we can write that m into dv by dt is equal to mg minus m into g minus k into v. Okay, now by dividing the whole equation with the m, therefore m upon m dv by dt is equal to mg upon m minus kv upon m. Therefore dv by dt is equal to minus g minus k upon m into v. Okay, now this is the equation of variable separable form. Take the vv term at one side and tt term at another side. Therefore dv upon and after integrating we will get here dv upon g plus k upon m into v, which is equal to minus integration of dt plus c. Therefore m upon k log of g plus k upon m into v is equal to minus t plus c. This is equation number 1. Okay, now step 3 is apply the conditions and evaluate the constant. Okay, when t equal to 0, v is equal to small v is equal to capital V. Therefore equation 1 becomes सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इनिशियल कंडीशंस अप्लाइड करना है. इनिशियल कंडीशन क्या है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड होगा तब स्मॉल v बिकम्स द कैपिटल V. ओके, द वेलोसिटी स्मॉल v इज द वेलोसिटी एंड कैपिटल V इज द प्रोजेक्शन वेलोसिटी. ओके, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और उसका वेलोसिटी वो जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा. और व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर c. Therefore after substituting these values in the equation 1 we will get here m upon k log of g plus k upon m into v is equal to 0 plus c. Now c is equal to m upon k log of g plus kv upon m. Now सब्स्टिट्यूट c का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, c का कांस्टेंट का वैल्यू है. नाउ वी हैव अगेन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1.
ओरिजिनल इक्वेशन पे ये कांस्टेंट c का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हमें मिलता है m अपॉन के लॉग ऑफ g प्लस के अपॉन m इंटू वी विच इज इक्वल टू माइनस टी प्लस m अपॉन के लॉग ऑफ g प्लस के वी अपॉन m। ये क्या है? ये c कांस्टेंट का वैल्यू है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c। नाउ देयरफॉर दिस प्लस ये वाले टर्म को हम ये साइड लेके आएंगे, माइनस m अपॉन के लॉग ऑफ g प्लस के अपॉन m प्लस m अपॉन के लॉग ऑफ g प्लस के वी अपॉन m। ओके, इज इक्वल टू t। नाउ ये दो लॉगरिदमिक टर्म्स का क्या है? इधर सब्सट्रैक्शन है। ओके, ये एक टर्म में स्मॉल v है और दूसरे टर्म में कैपिटल v है, और दो लॉगरिदमिक टर्म का जब सब्सट्रैक्शन होता है तब हम क्या करते हैं? उसका डिवीजन करते हैं। देयरफॉर t इज इक्वल टू m अपॉन के लॉग ऑफ g प्लस के अपॉन m इंटू v अपॉन g प्लस के अपॉन m इंटू अपॉन कैपिटल v। एक स्मॉल v है और दूसरा कैपिटल v है। अगेन इट विल अटेंड द मैक्सिमम, ये हमें इक्वेशन मिला। हाँ, एट टाइम t पे कितना वेलोसिटी उसने अचीव किया या कितना वेलोसिटी वो अटेंड करेगा, इसका इक्वेशन हमें यहाँ से मिला। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं हम? अगेन वी आर पुटिंग द वैल्यूज गिवन इन द इक्वेशन। हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि इट विल अटेंड द मैक्सिमम हाइट। वो मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करेगा? जब v इक्वल टू 0 होगा और t इज इक्वल टू t1 होगा, तब वो मैक्सिमम हाइट पे अटेंड होगा या मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊंचा वो जाएगा, उसके लिए हमें t इज इक्वल टू कितने टाइम में जाएगा ये हमें निकालना है। कितने टाइम में जाएगा? सपोज हम बोलते हैं t1 टाइम में जाएगा। और कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा? मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा? जब प्रोजेक्शन वेलोसिटी 0 होगी। देयरफॉर m अपॉन के लॉग ऑफ g प्लस के अपॉन m इंटू v अपॉन g। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर t1 इक्वल टू कितने टाइम में जाएगा? तो t1 कितना आ गया हमें? t1 इज इक्वल टू m अपॉन के लॉग ऑफ 1 प्लस के अपॉन mg इंटू v, इतना आया। विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइम? इतने टाइम में t1, ये क्या है? रिक्वायर्ड टाइम है। किसके लिए रिक्वायर्ड टाइम है? मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए। नाउ अगेन सेकंड इक्वेशन पे हम क्या बोल सकते हैं? के अपॉन m इंटू टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ g प्लस के एम अपॉन कैपिटल v अपॉन g प्लस के एम अपॉन स्मॉल v। ओके, नाउ हियर ये लॉगरिदम हम कैंसिल कर लेते हैं। जब हम लॉगरिदम कैंसिल करते हैं तो अब दूसरा टाइम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। देयरफॉर e रेज टू के टी अपॉन m इज इक्वल टू g प्लस के अपॉन m इंटू कैपिटल V अपॉन g प्लस के अपॉन m इंटू स्मॉल v। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर दैट देयरफॉर g प्लस के अपॉन m इंटू v इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, g प्लस के अपॉन m इंटू कैपिटल V e रेज टू माइनस के टी अपॉन m। ओके, देन कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन k प्लस v प्लस mg अपॉन k e रेज टू माइनस के टी अपॉन m। बट हमें क्या पता है? वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द ds बाई dt। तो यहाँ पे v रिप्लेस किया और उसकी जगह पे क्या डाला हमने? ds बाई dt डाला, और ये होल इक्वेशन वैसे की वैसे लिख दिया। तो उसके बाद हमें, और ये इक्वेशन हम क्या करेंगे? अभी इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट हियर, इंटीग्रेशन के बाद हमें स्पीड मिलेगा s। ओके, माइनस जी एम अपॉन के ये कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस यहाँ पे अगेन v प्लस एम जी अपॉन के, ये भी कांस्टेंट है इसीलिए वो बाहर जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस के टी अपॉन एम विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने इंटीग्रेट किया है। ओके, इसीलिए ओनली टी का टर्म आएगा, बाकी सब टर्म हम ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। प्लस डी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर स्पीड आएगा, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू, आफ्टर इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस के टी अपॉन एम इज द
that integration remain as it is with only the minus sign here. Okay. और अब हमें यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है. ओके, डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने अगेन t इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया है और d कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकाल लिया है. ओके, जो d का वैल्यू निकाल लिया है वो अगेन s इज इक्वल टू के इक्वेशन में हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है और जो आया है वो है हमारा फाइनल स्पीड. ओके, फाइनल स्पीड कितना है वो -gm/k इंटू टी प्लस m/k इंटू capital V plus mg/k into another bracket 1 minus e raised to minus kt/m. Okay, if you follow the certain steps, then this problem is not so difficult. Thank you students. If you have any problem, please write me in the comment section. If you like my video, then please like my videos, share it and subscribe it. Thank you students.